اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ اپنے تکلم کو تلوار بنائیں اور اپنے خیالات سے آگاہی فرمائیں ہمیں. جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ممنون ہوں اس وجہ سے کہ 21ویں صدی کے اس پرآشوب دور میں گلوبل ولیج کے اس پر تحرک اور کووڈ کے اس زمانے میں ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد جرمنی سے ہوا ہے جس کے روح رواں اردو ادب کے عمدہ شاعر مرثیہ نگار میرے محسن جناب محترم اقبال حیدر صاحب اور ان کے اراکین ہیں. میں بات کروں گا کیونکہ کچھ کاغذات سامنے رکھتا ہوں. گفتگو کا ہر جملہ مستند ہوگا، لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اردو ادب، اردو میں ترقی بورڈ 1903 میں بنا اور آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جس کے ذمہ دار صرف اردو داں ہیں، اسی طرح سے مرثیہ جو عمدہ ترین، وہ مرثیہ جس کے لیے ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے مرزا غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں. یعنی اگر اردو ادب کی گلدستے میں کوئی چیز ہے جو دنیا ادب کو پیش کی جا سکتی ہے تو وہ ایک کلاسک مرثیہ میر انیس کے ہیں اور دوسرے وہ غزلیں مرزا غالب کی ہیں. اس معیار کے مرثیے کو آج جس معیار پہ لایا گیا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم لوگ جو اپنے آپ کو مرثیے سے جوڑتے ہیں. یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں ہماری تحقیق کے مطابق ہمارے پاس 25,000 سے لے کر 30,000 جگہ کم از کم مرثیے کے 2 شعر یا زیادہ سے زیادہ 3 مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جس میں سے 80%، 90% مرثیے کلاسیکل دور کے آفتاب و مہتاب میر انیس اور مرزا دبیر سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ کانفرنس منعقد کی گئی اسی لیے ہے، اس کا اندیا اور اس کا تھنک ٹینکر یہی ہے کہ جو بات جوش ملی آبادی نے کہی تھی، جو بات احتشام حسین نے کہی تھی، جو بات جمیل مظہری نے کہی تھی، جو بات نجم آفندی نے کہی تھی کہ اگر کلاسیکل مرثیے کو اگر ہم اس میں تبدیلیاں کر جدید مرثیے کے روپ میں آج کے ماحول میں، آج کی نسل کے ساتھ، آج کے اعتبار کے ساتھ، آج کے لہجے کے ساتھ اگر نہ جوڑیں تو مرثیہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ کانفرنس اسی وجہ سے کی جا رہی. کلاسیکل مرثیے میں اس کی معنویت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس پر تو میں بات کروں گا، لیکن یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے، جس میں عامی اور عالم، جس میں نوجوان اور آپ کے بزرگ، جس میں ہر معیار کا اور ہر فرقے کا، دیکھیے آج کے دور میں ابھی آپ نے نظم سنی برادر اقبال حیدر کی. اردو ادب کو آج کے زمانے میں ٹیررسٹ زبانوں میں شامل کر دیا گیا ہے. اگر کوئی نظم، اگر کوئی آپ کے شہادت اردو کی طرف سے دی جا سکتی ہے کہ یہ امن کا، شانتی کا، محبت کا، اخوت کا، مروت کا، حریت کا اگر کوئی پیغام ہے تو مرثیے ہی سے مدد لینی پڑے گی. مثال سے پیش کر رہا ہوں، دریا فرات پر خیمے نصب ہو رہے ہیں، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا،
कहाँ का मुसाफिर कहाँ आ गया, कहाँ था मदीना, कहाँ करबला। हजरत अब्बास वाह मदीने नहर के अतराफ, नहर के किनारे खेमे लगा रहे हैं। शिमर आता है, कहता है यहाँ पर खेमे नहीं लगाए जा सकते। बता रहा हूं क्यों मर्सिये की जरूरत है। मीर अनीस ने जब मौला ने कहा कि अब्बास खेमे हटा लिए जाएं, तो मीर अनीस ने यहां पर मर्सिये में इस्लाम के कानून का नुक्ते असली रख दिया। क्या कहा? हजरत अब्बास ने शिम्र से कहा, सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में, क्या कहने, सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पांव ना रखना तराई में। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। है इस्लाम जो तलवार के भर से नहीं बल्कि अपने खून से और अपने अज़्म से, अपने इख्तियार से, जिसका पूरा प्रचार आप देख रहे हैं कि इंसानियत की शायरी में जिसका आखिरी जो अजीम शायर है वो मोहम्मद इकबाल है कोई जबान, है कोई नज्म। ये और बात है कि उसको जज्बाती रंग देकर इकबाल अनीस आगे बढ़ाते हैं, और जब हजरत अब्बास सर नेवड़ाए हुए, जब आंखों में आंसू, जब गुस्से से चेहरा सुर्ख है, जब हुसैन के पास आते हैं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये दोनों भाई हैं, दोनों की रगों में अली का खून है। तो फिर मीर अनीस ने एक शेर रख दिया। क्या कहते हैं मीर अनीस? हजरत अब्बास आते हैं, इकरार करते हैं, मैं हूं, इमाम से फरमाते हैं, मैं हूं गुलाम आपके अदना गुलाम का, आका मुझे ख्याल था बाबा के नाम का। बाबा का लफ्ज रखकर बता दिया कि हुसैन, अगरचे कि मैं आपका गुलाम हूं, अगरचे कि आप मेरे आका हैं, अगरचे कि मैं आपका मुती हूं, लेकिन हम दोनों की रगों में एक ही खून है, बाबा के नाम का। ये है बड़ी शायरी, ये है अजीम शायरी, ये है अजमत शायरी, ये है मर्सिये की आवाज। क्या कहने, क्या कहने। इसको समझाना चाहिए हमारी नई नस्ल को। क्या ये मर्सिये की इस दौर में जरूरत है? क्या मर्सिये की हिस्सियत की इस दौर में जरूरत है? मर्सिये के अखलाक की आज दुनिया में जरूरत है। मर्सिये के अफकार और मतालिब की आज जमाने को जरूरत है। मर्सिये के ज़ब्ते अखलाक की आज जमाने में जरूरत है। मर्सिया सिर्फ रोने रुलाने की चीज नहीं है। सच है मर्सिया नहीं अगर उसमें रोना ना हो। मीर अनीस ने क्लासिकल मर्सिये में कानून रख दिया 2 मिसरों में, लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे, मर्सिया दर्द की बातों से ना खाली होवे। तो मर्सिये में तमाम दर्द होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मर्सिये की खुश अहदी, मर्सिये की खुश किरदारी, मर्सिये की खुश वफाई, मर्सिये की खुश अमली, मर्सिये में जो किरदारों में जो अहमियत पाई जाती है, आज दुनिया को उसकी जरूरत है। अखलाक का कोई दर्स ऐसा नहीं जो मर्सिये में मौजूद नहीं। आपने मर्सिया पढ़ा नहीं, आपने मर्सिया पेश नहीं किया, आपने हुस्ने यूसुफ को बाजार मिस्र में और बाजार दुनिया के बाजारों में पेश नहीं किया। अगर एक मर्सिये को आप तजिया करें तो आपको मालूम होगा कि 10 से 12% हिस्सा सिर्फ मर्सिये का बैनिया होता है, शहादत का होता है। 80% अखलाक साजी है, अज़्म है, इज्जत नफ्स है और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। आज इस वजह से मर्सिये की जरूरत है कोई बताए कि मर्सिये में हिल्म, इल्म, सदाकत, शुजाअत, अमानत, सखावत, मोहब्बत, शफाअत, है कोई ऐसी चीज जो मर्सिये में नहीं है? देखिए, हम जानते हैं कि मर्सिया रेसा से आया है और रेसा आपके अरबी लफ्ज है। तो मर्सिया उर्दू अदब में क्लासिकल मर्सिये को समझने के लिए पहले मर्सिये को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से खसीदा जिंदों के खूबी और जिंदों के औसाफ को बयान करने का है, उसी तरह से मर्सिया मुर्दों के कहने का, उनके औसाफ हमीदा, उनके सिफात, उनकी तारीफ करने का नाम मर्सिया है।
اردو ادب میں مرثیہ فارسی سے آیا، فارسی میں عربی سے آیا، اور اسلام سے پہلے آپ کو ابو القیس کے اور حضرت عبد المطلب کے مرثیے ملتے ہیں۔ اسی بر صغیر میں آپ کو جانتے ہیں کہ دھرت تراشت کا کوروؤں کے تباہی پر مرثیہ ملتا ہے، ملتان پہ خسرو کا مرثیہ ملتا ہے، عجم کی تذلیل پر فردوسی کا مرثیہ ملتا ہے، آپ کو معتصم باللہ کے مرگ پر سعدی کا مرثیہ ملتا ہے، آپ کو سہراب کے ماتم پر آپ کو مرثیے ہر جگہ ہیں، ابو خانسہ کا مرثیہ ہے، حضرت پیغمبر اکرم کی وفات پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کا مرثیہ ہے، حسان بن ثابت کا مرثیہ ہے، حضرت فاطمہ کا مرثیہ ہے۔ لیکن یہ مرثیہ تو مرثیے دو قسم کے ہیں۔ جب میں کہوں عربی اور فارسی میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو پوچھا جائے گا کس کا مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اردو میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی لفظ مرثیہ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ امام حسین اور شہداء کربلا اور ان کے اصحاب کے بارے میں امام حسین کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مرثیے کی گفتگو ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت موجود مستند سب سے پہلی جو کتاب ہے نوسرحات، جو 1509 میں آپ کے اشرف بیابانی نے لکھی، 1800 شعر کی پہلی ہمارے پاس مرثیے کی کتاب، اور اس طرح سے آج تک ہم مرثیہ چل رہے ہیں۔ میں اس پر بات کروں گا۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مرثیے کا کانفرنس کر رہے ہیں، تو اگر پہلی کتاب نوسرحار ہے، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کتابیں ہیں۔ ہمارے پاس 12 مجالس ہیں، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اردو ادب کی بات کر رہا ہوں، واعظ شاہی کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس 10 مجالس ہیں، ہمارے پاس 12 مجالس ہیں، ہمارے پاس فضل علی کی کربل کتھا ہے، ہمارے پاس حیدر بخش کی گل مغفرت ہے، ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ عاشور نامہ ہے روشن علی کا، 3500 اشعار اس میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس روضۃ الشہداء کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں ہے، ہمارے پاس باخر آغا کی ریاضت الجنا ہے، ہمارے پاس ولی ولوری کا روضۃ الشہداء کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ عین البقا عطا خان کی اور دوسری روضۃ الاطہار، تقریباً میں نے جمع کی ہیں 15 سے زیادہ کتابیں جو 250 300 400 سال پرانی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب کے جو باوا جن کو ہم ولی دکنی کہتے ہیں، انہوں نے مرثیہ لکھا 1141 ہجری میں، پورے 300 سال تمام ہوئے ہیں۔ کہا حاطف نے یوں تعریف معقول، ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول، ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تھا 1141واں سال۔ یہ ولی دکنی کہہ رہے، ولی دکنی کے پاس مرثیہ ہیں۔ تو ہمارے جو مرثیے ہیں، کلاسک دور پر ہم پہنچنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہزاروں مرثیے ہمارے پاس اس وقت دکنی زبان میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو مراثی ہیں ان کو آپ 3 دوروں میں تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی ابتدائی دور، تشکیلی تدریجی دور، اور کلاسک دور۔ کلاسک دور کو پھر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، نخروی دور اور سنہری دور۔ نخروی دور میں آپ کو 4 شاعر ملیں گے عظیم، 4 ہی نہیں ہیں، درجنوں ہیں، 4 ممتاز ہیں: مظفر علی ضمیر، مستحسن خلیق، جعفر علی فصیح، چھنو لال دلگیر۔ اور پھر آفتاب مرثیے کے کلاسک اور سنہری دور میں آفتاب بن کے امیر انیس اور مہتاب بن کے مرزا دبیر فلک پر چمک رہے ہیں۔ وہی آفتاب جس نے کہا میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو رہی تھی ترازو شعر، مگر پڑھلا ہم نے گراں کر دیا۔ وہی مہتاب سخن
जिसने ये कहा था कि तू मुश्तहिद नज्म है, फर्ज उन पे है तकलीद, दोस्ताने मजामी पे न कर मना की ताकीद। हजरत दबीर। कहने का मतलब यह है कि फिरदौसी ने कहा था, मनम साख्तम रुस्तुमे दास्तां वगरना यली बूदे दरसिस्तां। अरे मैंने ये फर्जी दास्तान में अपने कलम से, शेरी कलम से एक वहशी को रुस्तुमे दास्तान बना दिया, वरना रुस्तुम क्या था? कुछ नहीं था। ये मेरे कलम के, आपके क्या कहते हैं, कर्तव्य है कि मैंने अपने कलम से उसको रुस्तुमे दास्तान बना दिया। लेकिन दोस्तों, हजरत मीर अनीस क्या कहते? जब मलिकुश शोरा मोहतशम काशी ने 2 खसीदे लिखकर तोहमासपुर और उनकी मलिका परवीन को पेश किया, तो दोनों खसीदों को वापस कर दिया शहंशाह ईरान ने, यह कहकर, मोहतशम तूने जो हमारे बारे में कहा है ये मुबालगे से काम लिया है, हम इसको कबूल नहीं करते। क्या बादशाह थे ये लोग, क्या फिक्र आली थी इनकी, हम इसके कायल नहीं हैं। तू मोहम्मद और आले मोहम्मद के बारे में लिख, जितना भी तू लिखेगा तेरे अल्फाज उनके मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे और हम तुझको नवाजेंगे, सिला देंगे। यह है उस जमाने की रीत। तो मैं ये बता रहा हूं कि मीर अनीस जो इस वक्त दुनिया का अजीम तरीन मर्सिया निगार है, वो इकरार करता है, फिरदौसी ने कहा था कि मैंने इसको अपने कलम से बनाया। मगर मीर अनीस क्या कहते हैं, मैं क्या हूं, मेरी तबा क्या है ऐ शहे शाहां, हस्सान व फरजदख हैं यहां आजिज व हैरान। हस्सान व फरजदख कौन है? अजीम तरीन अरबी के शायर हैं, शर्मिंदा जमाने से गए वायलो सहबा खासिर हैं, सुखन फहमो सुखन संजो सुखन दां, क्या मधा कफे खाक से हो नूर खुदा की, लुकनत यहां करती हैं जबान फसाहा की। किनकी तारीफ करूं? यहां पर तो जबानें लुकनत करती हैं। तो वो अजीम बरगुज़ा हस्तियों का जिक्र अनीस को करना है, वो बरगुज़दा अनीस को जो है बताना है, अखलाक बताना है। इसीलिए तो हाली ने कहा था कि उर्दू को अनीस ने गरा कद्र किया, बात देख पाई से उठा के लायक सद्र किया, खुव्वत जो नेहा थी इसमें दी सबको दिखा, दाने को शजर हिलाल को बद्र किया। आज आप मीर अनीस को, मिर्जा दबीर को उर्दू के शायरों में शुमार करने से घबराते हैं, जिसके अशार 25,000 बार हर रोज हर साल पढ़े जाते हैं। शेक्सपियर 6,000 बार पढ़ा जाता है। दुनिया में अगर कोई शायर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, तहकीक करके देख लें, मुसलसिल पढ़ा जाता है, तो वो मिर्जा दबीर और मीर अनीस है। तो उर्दू अदब को इनकी दहलीज पर अपने सर को मलने की जरूरत है, इनको उर्दू अदब की जरूरत नहीं है। उर्दू अदब के वकील की तरह से बता रहा हूं, वही किताब जो अभी इकबाल हैदर साहब ने आपको बताई, जिसमें मैंने एक मर्सिया मीर अनीस का तजिया कर 800 सफात में बताया कि देखो इस 100 आपके जो है 92-96 जो बंद हैं, उस मर्सिये में कितनी उर्दू अदब के मसाइल हैं, क्या महासिन हैं। उसमें 2500 के करीब मैंने मुहावरात, रोजमर्रा उसमें तलमीहात, उसमें क्या कहते हैं बदी और अल्फा लफ्जी जो मानवियत है, जो सनतें हैं, सब आपके सामने पेश की हैं एक मर्सिया में। मीर अनीस के कितने मर्सिये जाया हो गए वो तो नहीं मालूम, लेकिन मीर अनीस के 213 मर्सिये हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसीलिए मुकद्दमे शेर और शायरी में हाली कहते हैं कि पढ़ता हूं मुकद्दमे शेर और शायरी से 3 लाइनें पढ़ता हूं, हाली ने जो लिखी है, ताकि लफ्ज लफ्ज का एतबार रहे। कहते हैं, जिन लोगों के दीवान और कुल्लिया शाया हो चुके हैं उनकी तादाद भी कुछ कम नहीं, और उनमें खासकर मीर सौदा, दर्द, जुर्रत, इंशा, मुसफी, मीर हसन, नासिक, आतिश, वजीर, गालिब, ज़ौक़, जफर, शीफ्ता, दाग, सालिक, शौक, रिंद, असीर, बर्क, अमीर वगैरह हम
ہر قسم کا کلام، خواہ غزل ہو، خواہ مثنوی ہو، خواہ قصیدہ، خواہ قطع، وہ ربائی ہو، خواہ واسق، سب دیکھنا چاہیے. یعنی پورے اردو ادب کی شاعری کو دیکھنا چاہیے. یہ جو پڑھا ہوں اس وجہ سے پڑھا ہوں کہ یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں اس کے بعد الطاف حسین حالی؟ اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری خلیق، ضمیر، انیس، دبیر اور مونس وغیرہ کے مرثیوں کا مطالعہ ہے. دوستو، اردو کی وکالت کر رہے ہو، اردو کے پرستار کہتے ہو اپنے آپ کو، اور تم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو کہ تم نے مرثیے کے ساتھ کیا کیا. 1913 میں بلوچستان یونیورسٹی کا فارسی اور عربی کا پروفیسر ہیرا لال شیدا، جو 27 صفحے کے دیباچے میں دبیر پر لکھتا ہے، میں آریہ سماج کا ممبر ہوں مگر اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، مرزا دبیر کو پڑھو، اس کو مبلغ علم سے اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ. اگر تم ان ناموں سے جو حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہیں پسند نہ کرو تو اپنے ناموں کو لگا لو، مگر مرزا دبیر کے مبلغ کو مت گھٹاؤ. یہ ہیرا لال شیدا کا جملہ 107 سال پہلے ہمارے لیے سوال ہے کہ ہم نے کیا کیا. اخلاق سیکھے. یہ جو علامہ اقبال کا کلام ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں عزت نفس سے زندگی گزارنا ہے. یہ جو حسین کا میسج ہے، یہ جو حسین کا بھتیجا 13 سال کا قاسم جو یہ کہتا ہے کہ آج چچا موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عرفانی جذبہ کیا ہے؟ مرثیہ نگاروں کے پاس تصوف نہیں ہے، مرثیہ نگاروں کے پاس جوہر تصوف ہے جس کا نام عرفان ہے. کیا کہتے ہیں؟ پیش کروں گا کہ کہتے ہیں ایک واقعہ نخروی دور، کلاسیکل دور کے نخروی دور کے میر جعفر فصیح نے 3 بندوں میں لکھا ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے جو ہزاروں سے مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے یہ 3 بند سنے ہیں؟ سنیے. امام باقر چھوٹے ہیں، 2 امام، ایک امام زمانہ ہے، چوتھا امام، اور ان کا بیٹا چھوٹا سا 6 سال کا امام باقر باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا ہم غلطی پر ہیں جو لوگ اس طرح سے ہمیں اذیت دے رہے ہیں، ہمیں پتھر مار رہے ہیں، ہمیں نگاہوں سے جو دیکھ رہے ہیں جو دشمن کو بھی دیکھا نہ جائے. میر جعفر فصیح نے 3 بندوں میں بتایا کہ امام زمانہ نے امام آئندہ کو، زین العابدین امام نے، امام سجاد نے امام باقر سے کہا رو کے باپ نے اے پسر تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے،
ये समूम बादे नसीम है, न ये जख्म खाने में है मजा, न हलावतें हैं ये बेकिया, कहें क्या जो मिलती है लज्जतें हमें ताजियानों की ज़र्ब में। मेरे मौला आप पर फिदा। ये है मर्सिया, ये जो तप से तन है दहक रहा, ये बदन जो हुआ है लाल सा, यही दिल की ऐने मुराद है, यही अपना जाहो जलाल है जो ज़फ़ो गश की ज़ियादती, यही फजल और कमाल है, रुखे जर्द दीदा ए खूं फशा, यही अपना हुस्नो जमाल है। और ये जो मेहार हाथ में है, और ये जो हथकड़ियां और बेड़ियां मेरे हाथ और पैर में है, ये है दस्ता सुम्बुल ताजा का, सरे दस्त में जो मेहार है, नहीं सिलसिला ये है बद्धियां, ये पट्टियां जो मेरे जख्मों पर लगी हैं, यही तौख फूलों का हार है। दोस्तों, ये है मर्सिये की कैफियत। दोस्तों, ये है मर्सिये की मानवियत। दोस्तों, ये है मसनिये का हुस्न, जिसको हमने कुओं में छुपा रखा है, जिसको लोगों ने बताया है कि आप देख रहे हैं। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास किस तरीके का मर्सिया इंसान साजी का शहकार है। मर्सिया जज्बात का सबसे अहम, उर्दू अदब में बताइए कोई ऐसी नज्म है जिसमें इस कदर आपके जज्बात की वो हो। वाकयात को बदल नहीं सकता मर्सिया निगाह, लेकिन वाकयात के जुजियात में बहुत सी चीजें पैदा कर सकता है। मैंने किसी अपनी किताब में बताया है 4 जोड़ों को, ये जो जज्बात का मसला है, लोग जज्बात की बात करते हैं, आप मर्सिया छोड़ के जज्बात की क्या बात करेंगे। मीरानीस जज्बात निगारी का खुदा सुखन है। मिर्जा दबीर की तरह से कोई जज्बात लिख नहीं सकता, वो तो कलम को रोक लिया जब एक शख्स ने सब्ज मंडी में सुतून को अपना सर दे मारा कि अपने मुंह से खून उगलने लगा। और उस मिर्जा दबीर ने कहा कि मैं फिर ऐसे शेर नहीं कहूंगा, लिल्लाह करना जिबा शहे मशरखैन को मैं भीख मांगती हूं, मुझे दे हुसैन को। अली की बेटी शुम्र से भीख मांग रही, मैं भीख मांगती हूं, मुझे दे हुसैन को। मिर्जा दबीर ने फिर इसके बाद से ऐसे दर्दनाक शेर नहीं कहे। जब कोई अपना खुनबा लुटा देता है इस्लाम की खातिर, हमारे बचाने की खातिर, तो अश्क तो आ ही जाएंगे आंखों में। तो मैंने 4 जोड़े चुने। एक कासिम और उनकी जौजा जो जवान थे, एक शब की ब्याही है। एक जोड़ा हजरत अब्बास और उनकी जौजा, तीसरा जो 32 साल उम्र है, तीसरा जो इमाम हुसैन और जौजा मुतहर। आप देखिए, ये इल्जाम मीरानीस पे लगाया जाता है कि मीरानीस तो आपके क्या कहते हैं हिज्ब मरातिब। मीरानीस के पास सबसे ज्यादा हिज्ब मरातिब। आसिफिया जो लुगत लिखी गई, उसके सर अहमद दहलवी लिखते हैं कि मीरानीस मुहावरात का शहंशाह है, मीर तकीमीर भी उसके लगे नहीं खाता। वो मीरानीस आप देख रहे हैं कि जज्बात निगारी बता रहा हूं। तो क्या कहते हैं, जब एक रात की दुल्हन है तो दूल्हा भी शर्माया हुआ है, दुल्हन भी आपके। तो हजरत कासिम कुछ शेर देख लीजिए और उसके बाद आगे से मुझे बढ़ना है, क्योंकि बहुत से मतालिब को पेश करना है, वक्त कम है। जो बात मुनासिब हो वह समझाइए उनको, लाशाए जो मेरी तो ना दिखलाइए उनको। और माँ का जज्बा, माँ से मुखातिब होकर कासिम कह रहे हैं, और माँ क्या कह रही है कासिम की, समझे ना अब कोई के दुल्हन की अजीज हूं, कल तक थी सास आज मैं उसकी कनीज हूं।
और उसके बाद से सर झुकाए हुए हजरत कासिम आते हैं, जज्बात निगारी पेश कर रहा हूं। ये कह के आए सर को झुकाए दुल्हन के पास, आंखों में अश्क दर्द कलेजे में दिल उदास, फरमाया हमको हाय ये शादी ना आई रास, सब मर गए अजीज, सब मर गए अजीज शहंशाह हक शनास, बस्ती तमाम लुट गई वीराना हो गया, शादी का घर जो था वो अज़ा खाना हो गया। ताजा दुल्हन के जज्बात ये हैं कि शर्म से नेवड़ाई हुई है सर, खामोश थी घूंघट में दुल्हन सूरत तस्वीर, दूल्हा का सुखन सुन के कलेजे पे लगा तीर, चाहा के कहे काश हमारी अजल आ जाए, कुछ मुंह से ना निकला मगर आंसू निकल आए, रंग उड़ने लगा छा गए चेहरे पे झंडा पा, आप पड़ते थे अश्क आंखों से रुखसार पे ढलकर, रह जाती थी वो मेहंदी लगे हाथों को मलकर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके बाद से दुल्हन कहती है, यार अब दुल्हन बने मुझे गुजरी है एक शब, दूल्हा जो मर गया तो मुझे क्या कहेंगे सब, अब तक तो शर्म से न हिलाए थे मैंने लब, पर क्या करूं कि अब है मेरी जीस पुरताब, शब्बर के आफताब का वक्त जवाल है, दूल्हा से पहले मुझको उठा ले तो हो गए। एक जगह मीर अनीस ने कहा, उठूं जहां से दिलबरे शब्बर के सामने, औरत की मौत खूब है शौहर के सामने। जब हजरत अब्बास और उनकी जौजा का मुकालमा बयान कर रहा हूं कि जब हजरत जौजा को मालूम होता है कि हजरत अब्बास शुम्र से बात कर रहे हैं और शुम्र उनका अमान नामा लाया है, कि तो लोगों खेमे में चिमीगोइयां होने लगी कि हजरत अब्बास आपके चले जा रहे हैं भाई को छोड़कर। मीर अनीस हजरत अब्बास की जौजा कहती हैं, यारब न सुनू क्यों, यारब न सुनू मैं के जुदा हो गए अब्बास, ये गुल हो के भाई पे फिदा हो गए अब्बास। फिर उसके बाद से जब हजरत अब्बास आते हैं खेमे में तो कहते हैं, सदके गरी कहियो मेरी जानिब से बतकरार, क्या खैर है तुम शुम्र से क्यों करते हो गुफ्तार, वो तफरीका अंदाज है मरदूद खुदा है, शबीर के दुश्मन से अलाका तुम्हें क्या है। इस सोच में फिर रही थी कि हजरत अब्बास दाखिल होते हैं तो एकदम सुर्खी से हुई चांद से चेहरे पे नमूदार, सबसे कहा देखो ये दगा है कि वगा है, भाई को अलमदार ने छोड़ा तो ये क्या है, मेरा शौहर तो आ गया है, अब्बास तो आ गया है। तो आपने देखा किस तरीके से आपके जज्बात निगारी की गुफ्तगू की है। और इसी तरीके से जब आखिरी वक्त होता है तो इमाम हुसैन शहरबानो के पास आते हैं। शहरबानो कौन है? कसरा की पोती है। कहते हैं मैके में तो सब कुछ तुम्हें दौलत थी मुहैया, रहता था सदा बर में लिबासे खजो दीबा, घर फातिमा के आके किया फाके पे फाका, पैबंद पे पैबंद है चादर में हर एक जा। और कहते हैं शहरबानों से इमाम हुसैन, एक दौलत औलाद जो खालिक ने अता की, सो वो भी बुरे वक्त में शौहर पे फिदा की। बीबी शहरबानो कहती हैं, रोकर कहा बानो ने, ये फरमाओ ना हजरत, कौनैन की दौलत मिली हजरत की बदौलत, इस फाका कशी से कोई अफजल नहीं नेमत, इकबाल था मेरा कि हुई आपसे वसलत, कसरा की जो पोती हूं तो कुछ फख्र नहीं है, सरताज मेरा दोष मोहम्मद का मकी है। मेरा सरताज वो है जो मोहम्मद के दोष पर सवार था। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्लासिकल मर्सिये की गुफ्तगू हो रही है। मिर्जा दबीर ने 600 अशार का मेराजनामा लिखा। तो मेराजनामे में क्या लिखा? एक मामूली सा जो मजमून है कि हजरत का साया न था, है उर्दू अदब में, मैं नात का स्टूडेंट हूं, पेश करे कोई बेमिसाल। इसका मजमून यह है कि हजरत का साया क्यों नहीं था, पैगंबर अकरम जो है क्या साया क्यों नहीं था। तो साया होता है सिया,
मिर्जा दबीर ने इन 7 शेरों में जो मुसलसिल लिखा है, 7 मजमून बांधे हैं, और 7 मजमून इस वजह से बांधे हैं कि उसमें ब्लैकनेस और सिया है, और कहते हैं कोई बेमिसाल ऐसा आया नहीं कहीं जिसमें अनवर में साया नहीं, न क्यों साथ साये का हो नागवार, कि फजले खुदा साथ है सायादार। हुआ गुम जो जिले हबीबे इला, जिल कहते हैं साये को, हुआ गुम जो जिले हबीबे इला, बना सुरमए चश्मे खुर्शीदो माँ, वो साया बना साये बाने फलक, के साया करे सब पे मैशर तलक। मिला संग काबे, संग असवद, मिला संग काबे की तिलअत में कुछ, हुआ सर्फ मेहरे नबुवत में कुछ, वो साया सियाही बना एक कलम, के किलके खुदरत किया खुरा रकम। मिर्जा दबीर ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है आप देख रहे हैं। देखिए, वो सोच हो इस मजलिस में जो अब पेश हुई है, इसमें सोच हो, रिसाई रुबाई हो, सलाम हो, मरसिया हो, नौहा हो, मातम हो, विदा हो, ये सब रिसाई अदब, ये सब मरसिये ही की शाखें हैं। जिस तरह से समंदर से दरिया जुड़ा है, दरिया से नदी जुड़ी है, नदी से नहरें जुड़ी हैं, नहरों से आपके झीलें जुड़ी हुई हैं, उसी तरीके से ये सब एक ही मंबा। मजलिस की तरकीब के लिए इसमें हमने इस दुनिया में 3 तर्ज अज़ादारी हैं, एक अरबिक, एक फारसी, एक हमारा बर्र सगीर का। हमारा बर्र सगीर का इस वक्त जो अज़ादारी का ट्रेंड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, 116 मुल्कों में इस वक्त जारी व सारी है। और हमारी तरकीब यही है कि हम नज्म से शुरू करते हैं, बीच में हदीस रखते हैं, और नज्म और मातम पर खत्म करते हैं, और बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हिफाजत के लिए ये इसी वजह से आज हम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने इस अमानत को लोगों तक पहुंचाएं। तो मीर अनीस ने, मिर्जा दबीर ने, देखिए कितना बड़ा शायर है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सलाम लिखा जो 39 शेर का सलाम है, उसकी रदीफ चांदनी है, शोरा मौजूद है। जानते हैं कि चांदनी की जब रदीफ होती है तो मजमून कितना महदूद हो जाता है। 2 शेर सुन लीजिए। शुम्र ने चाहा कि हजरत से जुदा अब्बास हूं, शुम्र ने चाहा कि हजरत से जुदा अब्बास हूं, ये ना समझा चांद से छूटेगी क्यों कर चांदनी, ये ना समझा चांद से छूटेगी क्यों कर चांदनी। और अर्ज किया है खाक सारों का हर एक धब्बे से दामन पाक है, खाक सारों का, खाक सारों का हर एक धब्बे से दामन पाक है, गर्द गर्द आलूदा नहीं होती जमीन पर चांदनी, गर्द आलूदा नहीं होती जमीन पर चांदनी। और ये शेर देखिए कि अहमद मुख्तार हैं नूरे खुदा के आसमां, पैगंबर अकरम अहमद मुख्तार हैं नूरे खुदा के आसमां, हैदर व जहरा कमर, शब्बीर व शब्बर चांदनी। ऐसी चांदनी करने वाला ता कमाले चाहता मासूम रोशन सब पे हो, 14वीं शब को रहा करती है शब भर चांदनी। तो मौजू को निकाल कर गुफ्तगू करने का मतलब, इसी वजह से तो मैं कहता हूं मिर्जा दबीर वो यक्ताए फन है जिन्होंने उर्दू अदब में सबसे ज्यादा शेर कहे हैं। मानवियत मर्सिये की बात कर रहे हैं, इफादियत मर्सिये की बात कर रहे हैं। मिर्जा दबीर के इस वक्त मतबुआ और गैर मतबुआ मर्सियों के शेरों की तादाद 1,40,000 से ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास छिन्नूलाल दिलगीर के मर्सियों और उनके सलामों की तादाद जो है तकरीबन शेरों की तादाद 1,20,000 के करीब है। मिर्जा दबीर उर्दू का पहला वो शायर है जिसने आपके क्या कहते हैं सबसे ज्यादा मर्सिया इस वक्त लिखे हैं। मैंने जो काउंट किए हैं 675 उनके मर्सिये जो मतबुआ और 20 जिल्दों में दफ्तर मातम के अलावा 16 से तो आपके रुबाइयात और सलाम वगैरह शुरू होते हैं। उनके गैर मतबुआ मर्सियों को मैंने जमावरी की है, ये तकरीबन 750 के तकरीब मर्सी है। मिर्जा दबीर वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने ये चैलेंज किया है कि कहते हैं कि नजीर अकबर आबादी के पास ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए, नजीर अकबर आबादी से मिर्जा दबीर 1 की निस्बत 10 से बड़े हुए।
करके देखिए, रिसर्च तहकीक करके देखिए। मिर्जा दबीर तन्हा उर्दू का वो शायर है जिसने सबसे ज्यादा मनकुता बगैर नुक्ते के शेर कहे हैं। मिर्जा दबीर वो शायर है जिसने सबसे ज्यादा उर्दू अदब में इल्म बदी की लफ्जी और मानवी सनतों का इस्तेफादा किया है। मिर्जा दबीर वो तन्हा शायर है जिसके हसब पर, जिसके कसब पर, जिसके नसब पर, जिसके मजहब पर, जिसकी हयात पर, जिसकी शख्सियत पर, जिसके फन पर दोस्तों ने भी और दुश्मनों भी हमले किए हैं। मिर्जा दबीर वो तन्हा शख्स है जिसके जमाने में दबीरे थे जो उसके चाहने वाले थे, जिसके जमाने में अनीसे थे जो उसके मुखालिफ थे, लेकिन एक लफ्ज भी कभी नहीं कहा बुरा। और अगर लिखा भी तो मीर अनीस के लिए ऐसी आपके तारीख मर्ग लिखी कि आसमां बेमाह कामिल, सिदरा बे रूहुल अमीन। आप देख रहे हैं, आसमां बेमाह कामिल, आसमान बगैर चांद, 14वीं के चांद के, कैसा लगेगा? बेकार सा लगेगा। सिदरा बे रूहुल अमीन, और सिदरा में जो चौथे जो फलक चारूम है, जिस पर आपके हजरत जिब्रील रईस मलक की जो है तख्तनशीनी है, वो खाली सुनसान लगेगा। उसके बाद से कहते हैं आसमां बे महल कामिल, सिदरा बे रूहुल अमीन, तूर सीना बे कलीमुल्लाह, तूर तो कलीमुल्लाह की वजह से तूर बना है, अगर उस पर हजरत मूसा ही ना हो। मिंबर बे अनीस, आज मिंबर उसी तरह से बे अनीस है। क्या इससे बड़ा कहने, खिराज अकीदत कोई पेश कर सकता है? वाह 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 आप देख वाह। रहे हैं, मिर्जा दबीर वो है जिसकी दुआएं मुस्तजाब हुई है। मिर्जा दबीर ने, मैं अगर दुआ करूं कि खुदाया मुझे इस दिन मौत दे, मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लोग कितने पाकीज़ा लोग थे कि जब मिर्जा दबीर ने 29 साल पहले, 29 ईयर्स बिफोर, जब उन्होंने ये रुबाई कही, उसमें कहा कि मेरे मालिक मुझे मुहर्रम के दिनों में मौत दे दे, तो उनकी मौत आपके जो है 30 मुहर्रम को हुई है। तो देखिए क्या रुबाई में कहते हैं, जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, सी पारे अय्याम मुहर्रम करना, सी पारे 30 दिनों में, सी पारे अय्याम मुहर्रम करना, बर्बाद ना जाए मेरी खाक गर्दूं, तैयार चिराग बस में मातम करना, मेरी खाक से तुम एक ऐसा चिराग बयान करना जो मातम के दिन चलते रहें। तो मालूम यह हुआ दबीरियत को हमको लाजिम है कि पढ़ना चाहिए। अनीसे और दबीरे, अनीस और दबीर हमारी दो आंखें हैं जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं। अब हमको दबीर का पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि अनीस के पास दबीर नहीं है, लेकिन दबीर के पास अनीस है। दोनों शायर अजीम हैं। हमको दबीर को इस वजह से पढ़ना चाहिए कि दबीर से हम अपने जो है क्या कहते हैं, इसी वजह से जब जोश मलियाबादी ने तारीफ की मीर अनीस की, लेकिन उसमें लफ्ज जो इस्तेमाल किया दबीर का, ए दबीरुल मुल्क मानी, ए अनीस मोहतरम, ये दबीरुल मुल्क मानी देखने में अनीस के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर दबीर, दबीर सलामत दबीर को जो है खिराज अकीदत है। ए दबीर मुल्क माना, ए अनीस मोहतरम, ए शहंशाह सुखन, ए खुसरो सैफो कलम, तेरी हर मौजे नफस रूहुल अमी की जान है, तू मेरी उर्दू जबान का बोलता कुरान है। तो कुरान से बड़ी कोई किताब है उर्दू अदब का जो बोलने वाला है? तो कहने वाला ये है कि मीर अनीस ने जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर एक छोटा सा आप मरसिया देखें, मीर इसी को तो कहते हैं आपके मानवियत। मानवियत यह है कि क्या क्या दिया गया, मानवियत यह है क्या आज के दौर में इसका इस्तेफादा क्या है, मानवियत यह है कि किसी तरीके से मौजू को मजरू न किया जाए। इस जिंदगी को जो अल्लाह ने हमको यहाँ पर दी है उसका एक ही वो है कि किस तरीके से हम इज्जत नफ्स की जिंदगी गुजार सकें। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, मिर्जा दबीर के 76 मरसिये जो मैंने काउंट किए हैं लफ्ज जब से शुरू होते हैं। क्यों? कुरान मजीद के 20 सूरे लफ्ज इजा से शुरू होते हैं। इजा के मानी जब, जैसे कहते हैं जब, आपका दिमाग फौरन उस वक्त आपके जो है करबला के मैदान में पहुंच जाता है। इस एक छोटे से 32 बंद के मरसिये में मिर्जा दबीर ने 7 इख्तियाराती निज़ाम दाखिल किए हैं। कि इख्तियाराती निज़ाम क्या है? निज़ाम शमसी की तरह, यानी आप जानते हैं कि यहाँ पे सूरज के गिर्द जो सैयारे घूम रहे हैं जिसमें जमीन भी एक है, तो ये एक दूसरे से टकराते नहीं। उसी तरीके से
جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ایک ہی بند کا آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ جو ہے جب پریشان ہوئی، پریشان ایک معنی استعارہ کہتے ہیں میرا بچہ شیر ہے، تو کیوں آپ نے اپنے بچوں کو جانور کہا؟ نہیں، شیر کی جو طاقت ہے اس سے آپ کے ملا دیتے ہیں۔ میری بیٹی چاند ہے، چاند سے کیوں ملایا؟ اس میں تو آپ کے جو ہے ایک مخلوق ہے جو جامد ہے، نہیں، چاند کی جو سفیدی، چاند کی جو خوبصورتی، چاند کی جو چمک ہے اس کو لیتے ہیں، تو استعارے میں ایک چیز لی جاتی ہے اور اسی سے معنی باندھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعارہ، جبکہ اس میں لفظ تشبیہ نہیں ہوتی، جیسی کی نہیں آتی۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، مولا اس پہلے مصرے میں دو نظام میں استعاراتی میٹافورس، he has submitted two system of metaphors، دو استعاراتی نظام کو داخل کیا۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، آپ نے دیکھا عاشور کی نماز جب ختم ہوئی، پریشان ایک استعارے میں نماز کا ختم ہونا ہے، پریشان دوسرے استعارے میں امام حسین کے لشکر کا ختم ہونا ہے۔ جب پریشان ہوئی مولا ایک استعارے میں وہ ہے جو نماز برپا کر رہا ہے، امام نماز ہے، مولا دوسرے استعارے میں کمانڈر ان چیف ہے، وہ سپہ سالار ہے۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت ایک استعارے میں لشکر حسین ہے، جماعت دوسرے استعارے میں نماز جماعت ہے۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، نمازی ایک استعارے میں نماز پڑھنے والا ہے، نمازی ایک استعارے میں آپ کے مجاہد ہے، پسند ایک استعارے میں آپ کے کیا کہتے ہیں، یعنی پسند نیت ہے، اور دوسری اس میں آپ کے نیت جہاد ہے، اور نیت آپ کے کیا کہتے ہیں نماز ہے۔ اقامت ایک استعارے میں نماز کا رکن ہے، اقامت دوسرے استعارے میں عزم جہاد ہے۔ قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں، قبلہ دین ایک استعارے میں وہ جہت ہے جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، قبلہ دین ایک استعارے میں وہ قبلہ، ایک استعارے میں وہ کمانڈر ان چیف ہے جو حسین ابن علی ہے۔ قصد عبارت ایک جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور قصد عبادت ایک جگہ آپ کے جو ہے جہاد کے لیے راضی ہونا ہے۔ شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، اور محراب ایک وہ جگہ ہے جہاں پر نماز کی جاتی ہے۔ محراب غازی اور شہید، غازی اور دشمن کی تلوار سے جو علامت بنتی ہے محراب کی، اس کا ذکر ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو استعاراتی نظام داخل کیے، دونوں استعاراتی نظام آپ کے جو ہے جاری رہے۔ 7 استعاراتی نظام اس ایک مرثیے میں ہیں جو ایک دوسرے سے کہیں نہیں ٹکراتے۔ ہم نے سنا کہ ہمارے جو تقدس امام کا ایسا ہے مرثیہ نگاری میں، مرثیے کے افادیت کی بات کر رہا ہوں، مرثیے کی معنویت یہ ہے کہ اخلاق سازی ہو، تو ہمارے علماء جب منبر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ لکھنؤ کی تہذیب، لکھنؤ کا اخلاق، امام کا تقدس، امام کی اقدس حیثیت لفظ گرنے سے بچاتے ہیں۔ دبیر نے کہا سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ یہاں پر انیس کیا کرے؟ انیس کو لکھنؤ کو بھی نبھانا ہے، تو انیس نے کیا کیا؟ گرنے کے لفظ میں جو سبکی اس کو جذب کیا۔ حسین کو گرانے سے پہلے کس چیز کو گرایا؟ حسین کو گرانے سے پہلے قرآن کو گرایا، کعبے کو گرایا، عرش کو گرایا، پھر حسین کو گرایا۔ قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ اس کے بعد سے کہا کہ ہے حسین گرتے ہیں۔ اور دیکھا اس کے بعد سے میں نے یہ پورے مرثیے کا جب تجزیہ کیا تو میں نے اس میں ایک ہی مرثیہ حاصل ہے، مرثیہ ایک شعر نکالا، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ۔ بیٹی پر جب مصیبت آتی ہے تو اپنے شوہر کو نہیں پکارتی، اپنے بھائی کو نہیں پکارتی، اپنی ماں کو نہیں پکارتی،
अपने बाप को पुकारती है। फातिमा ने आवाज दी, वाह, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मोहम्मदा। तो आपने देखा वो अजमत जो इन मर्सियों की है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि हमारे पास आपके जो है तसव्वुफ नहीं होता मर्सिये में, बिल्कुल नहीं होता तसव्वुफ मर्सिये में, जब क्योंकि हम सोबत आपके अहद और अहमद की नहीं करते, हम बातें वो नहीं करते, लेकिन मर्सिये में जो कुछ भी है वो है इरफान, और इरफान है सुलूक की आखिरी हद, जिसमें कहते हैं, देखिए किस तरीके से दोनों के चीजों को पेश करता हूं। बहुत कम वक्त रह गया है, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इस मसले को पेश किया गया है, जिसका नाम आपके हम कहते हैं इरफान है। कि इरफान के बारे में मीर अनीस के कुछ शेर आपको पेश करना चाहता हूं, जो क्लासिकल मर्सिये की इफादियत है कि आजकल लोग समझे कि हमारे पास कम नहीं है ये चीजें जो मीर अनीस ने पेश की हैं, जिनके से दफ्तर भरे हुए हैं। फरमाते हैं कि पूछा ज़ैनब ने हुई फतह तो सरवर ने कहा, सर कटा दूं तो मुहिम इश्क की सर हो जाए, सर कटा दूं तो मुहिम इश्क की सर हो जाए। हंगामे ज़िबा कहते थे शय शुक्र ए करीम, क्या क्या मजे मिले मुझे खंजर की आब में। मर्सिया, कनात, अपनी मुट्ठी को बंद रखना, अपनी आबरू को रखना और अल्लाह पे तवक्कुल करने का दर्स देता है। क्लासिकल मर्सिया में मर्सिया मीर अनीस ने बताया कि जुस पंजतन किसी पे तवल्ला न चाहिए, गैरस खुदा किसी पे भरोसा न चाहिए। फिर कहते हैं, किसी के सामने क्यों हाथ जाके फैलाऊं, मेरा करीम तो देता है बेसवाल मुझे। कभी कहते हैं किस तरीके से इन मतालिब को मीर अनीस बयान करते हैं। कभी कहते हैं कि अल्लाह के फकीर को फेरा न चाहिए। मीर अनीस कहते हैं कि जिस तरीके से यानी मर्सिया एक इज्जत की जिंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार है, और इसी वजह से दबीर ने भी जब आए तो शहंशाह बैठा हुआ है उस जमाने में अपने जा, तो कहा जो खल्क में थे, कहते हैं बैठे हुए हैं अवध के बादशाह मिर्जा दबीर मिंबर से, क्लासिक मर्सिया, जो खल्क में थे साहिब तख्तो अलम व ताज। बहुत मुश्किल है दोस्तों शहंशाह के सामने, उसके सामने बैठकर उसकी रियाया में 180 साल पहले ये बंद पढ़ना, ये मर्सिये की कुव्वत है जो मर्सिये निगार से कहलवा लेता है। जो खल्क में थे साहिब तख्तो अलम व ताज, नौबत ये हुई है कि निशान उनके नहीं आज। शाहाने जहां फख्र से देते थे जिन्हें बाज, वो खब्र में हैं सूरह अलहम्द के मोहताज। सिक्का है ना वो और ना वो ताजो नगी है, दौलत तो खजाने में है खुद जेर जमी है। आप देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल तुम लोगों से ये पूछा जाएगा, कारू के खजाना हो तो इज्जत नहीं मिलती, दौलत से कमीने को शराफत नहीं मिलती। यही कहते हैं कि हल्क पर तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे हो नाम तेरा, दिल में तेरी याद रहे। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से अपने आप को पेश किया जाए वो सिर्फ दबीर पेश कर सकते हैं। कि मैंने बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, मैंने जो कुछ तेरे दरबार से पाया मौला, सब तेरी राह में खुश हो के लुटाया मौला। लफ्ज खुश पर तवज्जो रहे। मिर्जा दबीर के पास ऐसी ये जो मर्सिया क्लासिक होता है। तो अब आई ये बात, मैं समरी कर रहा हूं। मर्सिया जिसमें मरने वाले के औसाफ को गिनाया जाए और उससे दर्स हासिल किया जाए। दूसरी चीज, उर्दू मर्सिया, उर्दू तमाम असनाफ में उर्दू का सरताज है। तीसरी चीज, मर्सिया दक्कनी मर्सिया हुआ, तश्कीली मर्सिया हुआ, तदरीजी मर्सिया हुआ, क्लासिक मर्सिया हुआ,
क्लासिक मर्सिये के 2 दौर हुए, सिल्वर पीरियड एंड गोल्डन पीरियड, नुकरवी दौर और सुनहरी दौर, और उसके बाद से 1914 से, जिसके डॉक्टर हिलाल नकवी बात करेंगे, जदीद मर्सिया का आगाज है। जदीद मर्सिया में फिर 3 चीजें हैं, जदीद मर्सिया, उसके बाद मर्सिया जो तरक्की पसंदी के साथ चला, उसके बाद से जदीदियत मर्सिया, फिर माबाद जदीदियत मर्सिया, और आज का जो मर्सिया है जिसके बारे में अभी आपने देखा कि आज के मर्सिये के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बरादर ने किस तरीके से चेहरे में वो गुफ्तगू की है। मसला यह है कि इनको खानों में आप बांध नहीं सकते, इस वजह से बांध नहीं सकते कि ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी इब्तदाई मर्सिया वो कुतुबशाही दौर का हो या आखिरी मर्सिया आपके जो है आज का जो लिखा जा रहा है, इनमें एक मुमासिलत होती है, और उन मुमासिलत को जानना जो है आपके जरूरी है। जरूरत इन चीजों की है कि हम ऐसी कॉन्फ्रेंसें करें। अब रह गया ये कि क्या आज के दौर को में इसकी जरूरत है, आज के दौर में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आज का दौर कितना भी तरक्की करता जाए, आप देख रहे हैं कि हर लिहाज से ये नीचा होता जा रहा है। इसमें वो चीज ही नहीं है जिसकी तरफ से इसकी जो है ताजीम की जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मीर अनीस ने बताया कि किस तरीके से करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं आदत सवाल मुझे इस बात पर तमाम कर रहा हूं कि मर्सिये के अदवार को खानों में जमा नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन हम अपनी आज़ादी के लिए और अपनी सहूलत के लिए इनको बयान करने की ज़रूरत करते हैं। आज के दौर में जो सबसे अहम नज़्म है उसकी ज़रूरत आपके जो है और उसका नाम है मर्सिया, क्योंकि इसमें अमन और शांति वगैरह के मसाइल हैं। एक जो पुराना मजमून है जो मैंने अभी गुफ्तगू जो की कि किस तरीके से एक किताब का जो मजमून है 1000 साल पहले फारसी में कहा गया था, किताब इश्क दो बाबस करबला व दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब। इश्क की किताब के 2 हिस्से हैं, एक का नाम है करबला और एक का नाम है दमिश्क। एक को हुसैन ने लिखा और दूसरे को ज़ैनब ने लिखा। अनीस ने कहा 2 आलम 2 वरक हैं, एक किताब वस्फ हैदर के। ये जो 2 कानून हैं ये दर हकीकत 2 वरक हैं इमाम अली की औसाफ के, उनकी मधा के। ये मजमुआ वो है जिसका ना अव्वल है ना आखिर है, हम उसको बयान ही नहीं कर सकते कि अली की मधा क्या है। तो अब उसको चलकर 70 साल पहले मुमताज शायर हसन शाह जलाली कहते हैं, इसी मजमून में मैं जोड़ रहा हूं, हसन शाह जलाली पर मैं गुफ्तगू करूंगा 3 जनवरी पर पूरा एक आपके जो है उनके शान और शख्सियत पर। आप लोग इनके नाम से तक वाकिफ नहीं है, ये इतना बड़ा और इतना मुमताज शायर है, इसी वजह से तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे से आशना हो। हसन शाह जलाली कहते हैं अब्बास की किताब में 32 थे वरख। देखिए किताबी मजमून चल रहा है, मर्सिया ही मजमून चल रहा है। ये 47 बंद का मर्सिया है जो आज लिखा गया 70 साल पहले। लिखते हैं अब्बास की किताब में 32 थे वरख, लिखा था हर वरख पे इताअत हुसैन की। देखा आपने, मजमून से मजमून बनता है। दोस्तों गुफ्तगू ना तकमील है, लेकिन इस वक्त क्लासिकल मर्सिये की जो खूबसूरती है वो ये है कि इंसान सनासी जिसने अपने आप को अगर आप चाहते हैं अपने आप को समझना, तो ताकि दुनिया को समझ सकें, खुदा को समझ सकें, तो मर्सिये की तरफ रुजू कीजिए। मर्सिये के उन अखलाक साजी के, किरदार साजी के चीज़ों को ज़रूर कीजिए। और जो लोग मर्सिया पढ़ते हैं उनसे भी मैं इस्तदुआ ये करूँगा, सिर्फ बैनिया अशार मत पढ़िए, बल्कि ये मर्सिये भी कीजिए। और मर्सिये की मजालिसों को जो है होना चाहिए, और ताकि उनको समझाते हुए बताना चाहिए कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि इसमें क्या है। 5% भी अगर कोई ग्रास्प कर सके, हासिल कर सके, तो आप ये समझिए कि आपकी मेहनत काम पर लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ज़्यादा होने की माजरत। ये दर्द था मेरा, जैसा मीर ज़मीर ने कहा था कि 10 में कहूँ 100 में कहूँ ये दर्द है मेरा, जो भी कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। तो वही मिर्ज़ा दबीर जिन्होंने क्लासिकल मर्सिये की आपके मुसद्दस को रखा था, जिस पर इमारत दबीर और अनीस की बनी। मैं बहुत सौ के साथ आपके जो है इंसाफ नहीं कर सका। मीर अनीस ने कहा था उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में,
5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اور یقیناً اسی وجہ سے ان کے پوتے دولہ صاحب عروج نے کہا تھا، میں ایک جام سے ہوں، میں یہ میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں، کوئی اور نہیں۔ تو یہ وہ شراب ہے جس سے نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ان لوگوں کو جو ایسی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو آپ کے دامیں، درہمیں، سخنیں، خدمیں، آپ ان لوگوں کی جو ہے کوشش کیجئے جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی گارنٹی دی ہے، اور یقین مانیے قرآن مجید حفظ ہوتا ہے انہی راستوں سے، تو مرثیہ بھی حفظ ہوگا، اس کا تو اللہ حفظ کرے گا، لیکن ہماری امانت یہ ہے کہ کہیں امانت میں ہم خیانت نہ کر جائیں، اپنی جو آئندہ نسلیں ہیں ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔